Hello everyone, welcome to Bhumika classes. Myself Bhumika Yadav, and today we are going to start mathematics for class 8 NCERT chapter number 1 rational numbers. So let's start it. In this video we will learn about rational numbers, their properties, what is the role of 0 and 1, and additive inverse as well as a multiplicative inverse. So hope that you will like the video. So let's start it. First is rational numbers. What are rational numbers? Numbers which are written in the form of p upon q. They are known as rational number where the value of q will never be 0. Remember it, denominator will never be 0. रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शनल की फॉर्म में, यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है वो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या क्या विशेषताएं हैं. तो मेनली उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, और अगर आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, subtraction, addition, subtraction, multiplication and then division. Subtraction, multiplication as well as then division. Okay, then here we will write rational numbers, whole numbers, integers and natural numbers. Okay, so let's do of, we are doing here, remember we are doing here of closure property. Okay, so in closure property rational numbers are closed in addition. Okay, subtraction, no, sorry, remember it that in closure property, only in closure property and in subtraction about rational number and integer it will be yes. Okay, so it will be yes about integers as well as what? Rational numbers. Multiplication yes, division no. Okay, then whole numbers of addition, yes, of course whole number is 0. Okay, means numbers including 0, and natural numbers means like excluding the 0, 1 2 3 4 etc. Okay, rational no, I have told you rational number and integers also it is only. Then multiplication yes, division not. Addition of course, then we have done subtraction in integers yes, multiplication also yes, division not. Natural number yes, not, multiplication yes and division not. Okay, so this was about closure property. Understand the meaning of closure property. See there, a plus b is equal to c. इसका मतलब ये होता है, जैसे 5 plus 1 6 हो गया. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, a plus b is equal to c. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू सेम a प्लस b प्लस c. ओके, मीन्स चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आंसर विल बी सेम. सो इन एडिशन ऑल आर देयर. ओके, subtraction I have told only in closure property. Remember, only in closure property of subtraction and in integers and rational number only it is there. So all cross, multiplication all, commutative are there, not any division. And remember, if in exams it is asked that tell
is it divisible or not? So a upon a divided by 0. I have told in first of the video that denominator will be never 0. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a upon 0 भी लिख सकते हैं. अभी तो डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, तो हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर में 0 कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा इसका आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? नॉट डिफाइंड. ओके, we have done commutative property also. Now we are going to do about associative property. Which property? Associative. Associative property में remember associative property में 3 numbers होते हैं, while commutative property में 2 numbers होंगे. a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ये तो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी एक बार देख लेते हैं. a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं? b प्लस a भी लिख सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम इन ऑल द प्रॉपर्टीज, आइदर इन क्लोजर, आइदर इन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. ओके, तो ये कम्यूटेटिव रिमेंबर 2 नंबर्स होंगे और एसोसिएटिव 3 नंबर्स. ओके, तो एडिशन के लिए तो सभी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है. सब्ट्रैक्शन के लिए ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो होते ही होते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है. सो आवर प्रॉपर्टी इज डन. नाउ लेट अस डू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. a इंटू बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि a इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और ए बी प्लस ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है. इज इट क्लियर? तो हम पढ़ेंगे अब. नेक्स्ट है रोल ऑफ ज़ीरो. अब हमारी लाइफ में ज़ीरो का बहुत रोल होता है, ठीक है. तो ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो को हम क्या कह सकते हैं? ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है. क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, होती है क्या? 1. दैट्स इट. एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. डोंट बी कंफ्यूज्ड. अब हम ऐसे चीज पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, एडिटिव इनवर्स. इनवर्स का मतलब जानते हो? उल्टा कर देना, अपोजिट, उसका अपोजिट. तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही रहेगी. सपोज एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है? a है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस, उसका अपोजिट. या फिर आप कह सकते हो मल्टीप्लाइड बाय -1. वैसे तो एडिटिव इनवर्स का 0 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो a मल्टीप्लाई माइनस ए का एडिटिव इनवर्स -a, ये दोनों कट हो गए, 0. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ द नंबर, क्योंकि हम इधर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स जैसे a अपॉन b है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? b अपॉन a, ठीक है. और जो इसका आंसर होना चाहिए, अब देखो ये दोनों सपोज मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है. और एडिटिव आइडेंटिटी में a प्लस माइनस a, तो प्लस माइनस अपोज टू माइनस, आंसर भी 0. एडिटिव इनवर्स में 0 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 होना चाहिए. एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है. So that's it for today, and thank you for watching my video.